and these were launched by two different ministries. One Indradhanush mission is related to the vaccination, right? One Indradhanush mission was launched by Ministry of Health, and it was about the immunization, right? And the second Indradhanush was, this was asked, I think in UPSC it was asked, Indradhanush mission, right? And the second Indradhanush mission is basically about the A to G reforms in the banking sector, right? What's A2G? A2G is that I will discuss. Appointment of directors, BBB, ठीक है, C for capitalization, right? D for decentralization, right? E for empowerment, right? All these things, right? So this is A2G reforms of banking sector. BBB is part of that. तो उसमें एक ना गवर्नेंस में वो बोलता है कि देवर ज्ञान समागम done by Ministry of Finance in those times. That was actually brainstorming how to revive this banking sector, public sector banks, right? So this was basically part of this. BBB is part of B of A2G reforms of banking sector. Correct. Discuss करेंगे हम लोग. हाँ, तो अपन कहाँ थे? वे आउट. लिखिए. There's need to focus need to focus on the pattern of the growth the government has to ensure the maximization of active participation of the people. There's need for sector specific, region specific, and group specific policies. So sector specific, Region specific, group specific, and group specific policies. The government must focus on the primary sector by increasing the capital formation in the sector, increasing profitability of the sector. ब्रैकेट में लिख लीजिए MS स्वामीनाथन रिपोर्ट. Sir, isn't that an agricultural report? Swaminathan. इट्स एग्रीकल्चर रिपोर्ट. जो अभी सबसे बड़ा जो डिमांड है वो यही बोल रहा है लोग कि वाई यू आर नॉट अप्लाइंग, जिसमें वो बोल रहे हैं कि आपका दुगना किसानों की जो आय करनी है, राइट? हाँ, अशोक दलवाई का भी यही है बाई 2022, राइट? तो अशोक दलवाई भी है, लेकिन ना सबसे जो एक जनरल उसमें आता है कि MS स्वामीनाथन एवरीबडी. अगर आप MS स्वामीनाथन रिपोर्ट बोलेंगे द पीपल इवन if you if you are watching these debates, if you are going to the newspapers, तो MS स्वामीनाथन का नाम आ रहा है. तो उन्होंने ये बोला था कि भाई आप जो इनका जो है इनपुट है उसका दुगना आपको इनको पैसा देना चाहिए, दुगनी आय इनकी करनी है, राइट? अब पता नहीं व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर पेइंग 1.5 टाइम्स द इनपुट कॉस्ट. पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई स्टिल पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम. फर्स्ट थिंग. सेकंड, द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रमोट the exports of those goods
which are labor intensive and comparative advantage for India, and having comparative advantage for India. Sir, what do you mean by comparative advantage? Comparative advantage means, when I was discussing, even this economic survey is also highlighting this point. And they are saying that if we see the export items of India, you will find top 3 items are petrochemical products, gems and jewelries. We are exporting petrochemical products. They are amongst the top 3, right? And gems and jewelries, right? So, और ये मोती वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो व्हाट दे आर सेइंग दैट वी शुड कंपैरेटिव एडवांटेज. इफ़ यू सी द जो हमारा टेक्सटाइल है, दैट इज़ ऑन नंबर 5 and 6, राइट. एंड इफ़ यू सी द एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ बांग्लादेश, टेक्सटाइल इज इन नंबर 1, राइट. सो कंपैरेटिव एडवांटेज इज you should what is your USP, right? You should export something at which you are. अभी आप क्या कर रहे हैं, आप पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे आपके घर में आ रहा है, क्रूड ऑयल, देन यू आर रिफाइनिंग इट, उसका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकला है उसको आप बेच रहे हैं, राइट. दिस इज व्हाट यू आर डूइंग. द सेम गोज विद दिस जेम्स एंड ज्वेलरीज. आप उसका कटिंग एंड पॉलिशिंग कर रहे हैं केवल. तो वो बोल रहा है कि टेक्सटाइल तो आपका घर का है, कॉटन आपके घर में उग रहा है, एवरीथिंग इज एट योर होम, देन व्हाई यू आर नॉट एक्सेलिंग इन दैट. तो इकोनॉमिक सर्वे भी यही बोला, यू शुड take that part. Comparative advantage means you are not dependent on anybody. There's 100%. You should take what is your USP. आपको कोई बिजनेस जब आप करते हैं, यू नीड वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. लैंड आपके घर की है ही, सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल जो आपके घर में है, आप उसको क्यों नहीं बना रहे हैं? मतलब यू आर मोर एट द कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ द टेक्सटाइल एंड लेदर. वो आपके घर में हो रहा है रॉ मटेरियल, रादर देन लुकिंग फॉर द पेट्रोलियम प्रोडक्ट. उसको आप क्यों उस पर फोकस करे जा रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? कंपैरेटिव एडवांटेज मीन्स द गुड्स at which you are comfortable with, you are having advantage in the sense that it is grown at your home, ठीक है. you are having लेबर, चीप लेबर आपको मिलेगी, ठीक है. लोग जानता भी है भाई आपका जो वो था मसलिन क्या था प्रायर टू दिस ब्रिटिश, हमारे यहाँ का जो मखमल था, दैट वाज एक्नॉलेज वर्ल्ड वाइड. वो तो इनका फैक्ट्री कल्चर ने वो ख़त्म किया, इंटेंशनली ख़त्म किया, राइट. तो अब तो वो वही बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि आपको उसका एडवांटेज उठाना है. लाइक दे आर टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ बांग्लादेश, वियतनाम के, उनका जो अगर आप देखेंगे लिस्ट, तो दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ टेक्सटाइल एंड ऑल दोज थिंग्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द टर्म कंपैरेटिव एडवांटेज. ब्रैकेट में डालिए लेदर एंड टेक्सटाइल. This was suggested in the economic survey. हाँ, इट इज सजेस्टेड इन द इकोनॉमिक सर्वे. दिस टाइम इकोनॉमिक सर्वे, इवन हर साल 2016-17 में भी ये बोला गया है. उन्होंने पूरा वो चैप्टर जो मैंने आपको वो बताया था ना, लेदर वाला, वो कपड़े एंड वो लेदर वाला, वो बोलता है कि मतलब उन्होंने पूरा लिस्ट दिया है कि आपको किस में काम करना है. आपका जो मैंने बताया था वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर लैक्स में, वो बोलता है कि आपका 24 वो टेक्सटाइल वाले में हो रहा है, स्टील वाले में 0.5 हो रहा है. देन दे आर ऑल्सो एक्सप्लेनिंग वाई बांग्लादेश. मैंने कल डिस्कस किया था कि व्हेन इट वाज अज्यूम दैट इट इज़ द इंडियन मूवमेंट आफ्टर द स्लो डाउन ऑफ द चाइना, बट स्टिल वी कुड नॉट मतलब टेक दैट अपॉर्चुनिटी. सो एन नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर, ठीक है. वो उसमें एक्सप्लेन किया बड़ा अच्छा, ठीक है. देखिए मैंने आपको फिर वही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप इस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे तो आपको एक पूरा आंसर मिलेगा, ठीक है. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको आंसर्स को ना अपने को मिक्स रखना है, यहाँ से भी उठाना है, वहाँ से भी उठाना है. अगर आप रहेंगे कि नहीं इस अगला जो क्वेश्चन आएगा वो इकोनॉमिक सर्वे में, उसी का आंसर वहाँ से लेके आऊँगा, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप वो करके आएंगे तो गड़बड़ करके आएंगे. इसलिए ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको लिखा रहा हूँ इट्स ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू दिस इंक्लूसिव ग्रोथ क्वेश्चन, नॉट एट ऑल. ये आप कहीं भी डाल सकते हैं और ये आपको डालना ही है हर जगह. दीज आर आइडियाज़. हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको कोर नहीं छोड़ना है. इकोनॉमी में आप इकोनॉमी ही लिखेंगे. इकोनॉमी में आप ये नहीं कि आप वो फैंटेसी नहीं करके आएंगे, ठीक है. हाँ, इकोनॉमी में आप IR लिख रहे हैं, IR में आप इकोनॉमी लिख रहे हैं, आप पॉलिटी लिखे जा रहे हैं. वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, इकोनॉमी में नहीं. आप इंक्लूसिव ग्रोथ में आप एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, DPSP आपको बोल रहा है कि भाई आपको मतलब घटाना है इनइक्वालिटी, लिख सकते हैं आप बिल्कुल, ठीक है. लेकिन ये नहीं कि आपने 75% क्वेश्चन आपने वो आर्टिकल 38 को डिफाइन कर रहे हो, 39 को डिफाइन कर रहे हो, बेमतलब की बातें कर रहे हो. इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. यू कैन गिव अ टच, ठीक है. तो आपका आंसर एक
मिक्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, हाँ, वन ऑफ द इमर्जिंग चैलेंज in the growth story across the world has been a trade-off between climate change and growth. The recent glacial avalanche in उत्तराखंड, इन जोशीमठ लिख लीजिए, जोशीमठ, JOSHIMATH, द एग्जैक्ट लोकेशन इज जोशीमठ। Questions: the growth strategy and hence the growth should be pro environment and sustainable. नेक्स्ट लिखिए, गुड गवर्नेंस should be integral to the growth. Because policy implementation is very much essential than the policy formulation. Policy implementation is more essential than policy formulation. People felt the changes through the implementation of the policies. So, good governance becomes very important. राइट, फिर ये सारी कहानियाँ आप जो जितनी भी पढ़ाई हैं उनको सबको आपको ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट लिखिए, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, write down. Jobless growth can be defined as an economic situation in which growth is there, but there is no relative generation of the jobs. Technically, it can be defined by the term employment elasticity. It's a measure of the percentage change
in the employment associated with 1% change in economic growth. It indicates the ability of an economy to generate employment opportunities for its population as the percentage of its growth process. As the percentage. Its growth, It's percentage of its growth. growth process. Which term tells you about the efficiency of the economy? Yes, sir. Which term tells you about the efficiency of the economy? How will you know that whether the investment is efficient or not? There's a term. Capital output ratio or capital adequacy ratio, something like that. GDP वही तो GDP भी एक term ऐसा होता है which is telling you that if you are giving something input to the economy and something is coming in the form of output, GDP growth, what is that term? I think it's capital. Incremental capital output ratio, ICOR. राइट आप लोगों ने ये बताओ पहले रिवाइज किया है कि नहीं इकोनॉमी? अब तब से पढ़ा है, तब से कितनी बार पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अभी मिला है सर। एक भी बार नहीं पढ़ा? एक बार पढ़ा है? एक बार पढ़ा। अब हम कब क्लास हमारी कब हुई थी लास्ट टाइम? जुलाई वगैरह। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी. It's almost 7 months. And in 7 months you haven't revised. मतलब कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज। देखिए इशू वही है, आप लोग बोल रहे हैं कि समझ में मतलब इकोनॉमी बड़ा मतलब 7 महीने में आपने एक बार रिवाइज किया है, नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैंने आपको आने से पहले ही बोला था कि अच्छा तब से कंटिन्यू क्लासेस ही चल रही हैं क्या? इस बार थोड़ा खैर हौच पौच तो हुई हैं चीज़ें, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू शुड मतलब गियर अप। कितना टाइम पढ़ते हैं आप लोग क्लासेस के बाद में? 9 बजे तक 10 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद 10 बजे सो जाते हैं? 4-5 घंटे अलग से। अच्छा 10 बजे के बाद सो जाते हैं? सो जाते हैं। कितने बजे जगते हैं? 5:30। अच्छा। सुबह न्यूज़पेपर लगता है तो मेरे को आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, एक तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज़ इंक्लूड समथिंग फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इट्स मस्ट आइदर योगा और फिजिकल एक्टिविटी। ध्यान रखिए इस चीज़ को, एटलीस्ट 1 आवर, अदरवाइज आपका ना सब कराए पे पानी फिर जाएगा। मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ, मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग चलिए घर के पास में अच्छा है, आप यू आर नॉट स्टेइंग इन दिल्ली, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि वहाँ तो और ज़्यादा बुरा हाल है, राइट? सो प्रिपेयर मेंटली योरसेल्फ। अगर आप योगा को कर लें इंक्लूड तो बहुत ही अच्छा है, राइट? बिकॉज आई एम टेलिंग यू व्हेन यू आर अबाउट द एग्ज़ाम ना, आपका दिमाग में जो खलबली मचेगी ना, आपको नींद नहीं आएगी, एंड दैट इज़ नेचुरल, ठीक है? आप 2-3 घंटा सोएंगे, 2-3 महीने प्रोसेस रहेगा एग्ज़ाम से पहले,
तो आपकी बॉडी ना इट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि मैनी टाइम्स इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट पीपल कोलैप्स एट दैट टाइम, ठीक है। और उससे घबराना नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा है कि मैं नींद नहीं आ रही, वो नेचुरल है, ठीक है, हाँ इट हैपन्स। तो बट योर बॉडी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, योर माइंड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इन सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं ना कि आप ये सब करके जाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब चल रही है आपकी, आप इस पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना हम निगलेक्ट करते जाते हैं और वो उस समय जाके क्रिटिकल हो जाती हैं, राइट। एक ना जब आपको, इफ़ एनीबडी इज़ MBA अमंगस्ट यू नहीं है, तो जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें जब वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है तो उसमें ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट वो होता है कि आप ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एंड में जाके ना आपके लिए बड़े क्रिटिकल बन जाते हैं। आपने सारी तैयारी की, आपकी हेल्थ डाउन हो गई उस वक्त, देन व्हाट, सारी चीज़ बेकार। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज गैप्स। तो पहली चीज़ एक तो अच्छा खाइए, ठीक है, और आप ये दिमाग को थोड़ा ठीक रखिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बिकॉज इट्स बेस्ड अपॉन द माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्योंकि आपको ना नींद नहीं आएगी उस वक्त, तो उसके लिए आपको दिमाग को तैयार रखना है। फिज़िकल या फिर सबसे बेस्ट योगा है, इफ़ यू कैन इनकॉर्पोरेट योगा इन योर लाइफ स्टाइल, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और दूसरा क्या है, फिजिकल वॉक का मतलब ये है, अगर जिस वक्त आप वॉक कर रहे हैं, आजकल तो सारी चीज़ें आप कान में लगाओ, अपना सुन के अपना वॉक करते रहो, क्या दिक्कत है, दैट वर्क्स फॉर एवरीबडी, राइट, वो करिएगा आप, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया ना, ये चीज़ें हम लोग नेग्लेक्ट करते जाते हैं। आगे लिखिए इसमें, एज पर द 12th प्लान डॉक्यूमेंट, as per the 12th plan document, the employment elasticity in India declined from 0.44 in the first half of the decade that is financial year 99-2000 to 2004-2005 to as low as 0.01 during the second half of the decade, ब्रैकेट में 2004-05 to 2009-10। राइट, 2004-05 to 9-10। आगे लिखिए इसमें, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी has been observed negative during the decade of 9-10, which means people are moving out of agriculture, it has also been observed negative in manufacturing sector, which clearly explains that required jobs are not being created with the investment in the manufacturing sector.
राइट। हमने समझ लिया जॉबलेस ग्रोथ क्या है। अब आगे लिखिए, व्हाई देयर इज जॉबलेस ग्रोथ। इसमें लिखिए जॉबलेस ग्रोथ, व्हाई देयर इज जॉबलेस ग्रोथ। इफ वी ऑब्जर्व द ग्रोथ post NEP, it is being observed that growth is taking place in the sectors which are not generating the employment. If we comparatively analyze the performance of East Asian economies with India, it is being observed that when these economies, when these, that is East Asian economies, जो जिनको एशियन टाइगर्स भी बोलते हैं, इसमें सारा आपका वियतनाम, थाईलैंड, ये सारा जो कंट्री है, ताइवान, ये सारा जो कंट्रीज है, राइट। क्या लिखा है? एशियन टाइगर्स। एशियन टाइगर्स इसको बोलते हैं। हम लोग नहीं है इसमें, ठीक है। क्या लाइन लिखा है आपने? When these economies were growing at 7 to 10%, their textile export growth was 20 to 50%, was in the range of 20 to 50, while the growth in leather export was observed more than 25%. In the Indian context, we are having comparative advantage if we, क्या बोला है? we are in the Indian context we are having comparative advantage in terms of cheap labor, abundant land, but our policies has not realized the benefits of this. Countries like South Korea and Taiwan have taken the benefits of these comparative advantages
but India didn't realize the policy of small scale industries did not allow Indian goods to be competitive in the market, and hence there was no demand of Indian goods at the global level. There was no demand for Indian goods at the local level, at the global level. After NEP, globalization infuses, or globalization was driven by capital intensive, technology intensive, skill driven, but India at that time, India in the 1990s, was lacking all these things. The sectors which were labor intensive, like agriculture and manufacturing, were either stagnating or growing with very slow rate. Right. Post NEP, the only sector which shows tremendous growth was either sophisticated manufacturing, bracket में लिखिए pharma and auto, and either or services sector, bracket में quaternary and quinary. But it requires specialized skilled labor. Skilled labor, and India lagged on that front. Correct. So this is the reason. Now coming to way out. The need is to increase employment elasticity
in the primary and secondary sector. For primary sector, we should focus on increasing the growth rate of agriculture on one hand, and reducing the dependence on agriculture on another hand. Full stop. Dependency can be reduced by taking out of the people from agriculture and providing them employment opportunities in the secondary sector. Full stop. It can be done by making these unskilled people providing them skills and making them employable. ब्रैकेट में आप लिखिए स्किल इंडिया प्रोग्राम. स्किल इंडिया प्रोग्राम. The government should focus on labor intensive industries like textile and leather. These industries are not only providing the employment but lead to women empowerment. Can anybody explain this? There is a lot of untapped labor in the form of women who are not working, and textile industries generally require not much upskilling, so they can be easily trained and brought into under the shade of employment. और कुछ? Since these are labor intensive, lot of patience is required, so women can work. Actually, women, these sectors are women have skills for that only. Textile, if you talk about textile, women are having skills for that only. अगर आप लेडीज को देखेंगे, मतलब स्टिचिंग, ये उनका मतलब स्किल है, उनका ये इनहेरेंट स्किल है, राइट? So, and if you see this sector, can you, if you ask a lady to work, will she prefer to work in a steel factory, or she will prefer to work in a textile factory? Natural textile factory, she will prefer to work in a textile factory. It is inherent.
So that means the skill required for these industries is with the lady. So if more and more these sectors are being developed, that means you are roping in more and more women. भाई जितना भी आपका काम होता है, मतलब जैसे वो हथकरघाई जितना भी है, क्या ऐसा चीज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इफेक्टिवली एम्पावरिंग द विमेन, राइट. सो इस वाले सेक्टर को आप डेवलप करने से क्या होगा, यू आर एम्पावरिंग विमेन, राइट. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 also supported the idea of promoting textile and leather industry. Economic Survey 2021 also highlighted that there is absence of the goods in the export list of India at which India is having comparative advantage. At which नहीं, in which करिए इसको, in which India is having comparative advantage. In which India, at which की जगह in which India is having comparative advantage. Like textile and leather goods are not amongst the top 3 exported items from India. राइट. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, recent steps undertaken by the government of India are the steps in the right direction. Programs like Skill India, establishing ITIs, vocational institutes, promotes the employability of unskilled people. Employability of the unskilled people. Full stop. Even new economic policy or new education policy supports the idea of vocational training. Full stop. Programs like Make in India, Digital India, Housing for All,
provides employment, इसमें नरेगा भी ऐड कर लीजिए, नरेगा, एमजी नरेगा, provides employment to the masses. ठीक है। अच्छा, इसमें ना आप एक चीज़ ध्यान रखा करिए, मतलब स्पेशली इन इकोनॉमी, आप ना फ्लो चार्ट आपको अपने आप बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। योर आंसर शुड बी मतलब ना मिक्स, जैसे अभी मैंने कल बताया एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयर, ऐसे आप बना दो, कुछ ज़्यादा आपको आर्टिस्टिक नहीं चाहिए, उसको बस एग्जामिनर को समझा दो। देखो एम्प्लॉयबिलिटी तो आप उसके साथ में लिख दो स्किल इंडिया, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। उसके बाद फिर अगर आप बोलोगे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में लगो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ठीक है, हाउसिंग पॉलिसी, हाउसिंग फॉर ऑल, उससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को। यहाँ आप उसे एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं, नरेगा, ठीक है, उसका आप एक मैचिंग दिखा दो, ठीक है, तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये जॉब प्रोवाइड की जा रही है। और फिर अगर आप उसको एडवांस करना है तो आप उसको इस तरीके से दिखा दो कि जैसे मैंने बोला ना, आपको एग्रीकल्चर से निकालना है लोगों को, तो यहाँ आप एग्रीकल्चर का ग्रोथ कैसे करोगे। अगर कोई पूछता है एग्रीकल्चर का आंसर क्या है, बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, दो तरीका है, या तो आप इसका ग्रोथ करोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे कि अभी जैसे ग्रोथ 4 to 5%। ग्रोथ जब करोगे तो कैसे करोगे, इसमें आप दुनिया भर का जितना भी प्रोग्राम्स है ना, कि आप उनका जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो लेके आए थे वो, जैसे उनकी हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है, नई नई स्कीम सॉइल हेल्थ कार्ड उससे बढ़ रहा है। आपने पीएम किसान योजना जो आई है, ठीक है, जिससे वो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड जो आया, उससे इसका मतलब ये है आप ग्रोथ बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। दूसरा आप क्या करोगे, आपको डिपेंडेंसी घटानी है, यू हैव टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी। हाउ यू विल डू दैट, you have to remove people out of this. Here you will write skill them. How you will skill them, Skill India. Where you will rope in these people, you will rope in these people into the programs like Make in India. You will rope in them in the program like National Housing for All, Housing for All, for all, right? So you can prepare such flow charts in the exam. तो इट इज़ वेरी क्लियर टू द एग्जामिनर, नहीं बंदे को क्लियर है, ये ग्राफ देखती है उसकी वो पढ़ेगा ही नहीं आपका आंसर, क्योंकि ये ना बिल्कुल क्लियर है कि आप कैसे उसको वहाँ से निकाल रहे हैं। आप इसमें पूरा पेज भर दोगे और आपने ये चार्ट डायग्राम बना दिए। यू हैव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, कैसे करोगे, अब ये इन बंदों का क्या होगा जो यहाँ से निकलेंगे, यू विल स्किल दैम, वेयर यू विल रोप इन दैम, यू विल रोप इन दैम इन टू दीज प्रोग्राम्स। सरकार भी यही कर रही है ना, सरकार यही तो कह रही है, वही आपको कहना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस जॉबलेस ग्रोथ। एक नया लिखिए जो इस इकोनॉमिक सर्वे का आइडिया है। इकोनॉमिक सर्वे दिस वॉल्यूम 1 चैप्टर 4, डिबेट ऑफ इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, inequality and growth, conflict of or convergence, conflict or convergence. This economic survey has initiated the debate whether India should focus only upon the growth, ब्रैकेट में लिखिए इंक्रीजिंग द जीडीपी साइज, इंक्रीजिंग द जीडीपी साइज, और should only focus on reducing the Gini coefficient. The Gini coefficient.
India, oh sorry, the survey examines this issue with respect to the developing countries like India and China and the advanced economies. India and China. And the advanced economies. The survey highlights that both economic growth and inequality have similar relationships with socio-economic indicators in case of advanced economies. While in the context of India, growth and inequality are converging in the sense that growth is leading to the inequality, but on the other hand, it is also leading in the improvement of social indicators. Right. Next लिखिए. The survey take the example of China. And observe that Gini coefficient in China rose in 1980s to 2011 by 62%. But next time, but it was also leading to huge fall in poverty. The survey have also taken the example of a survey conducted in US, in which the survey is about how do people view inequality. In the survey,
people are not outrightly rejecting the inequality, this economic survey even takes the example of Rawlsian criteria, RAWL. जॉन रॉल्स पता है ना, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जस्टिस की जो बात करता है, रॉल्सियन क्राइटेरिया, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट की जो बात, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मासेस, वो बोलता है ना कि मैक्सिमम लोगों का भला होना चाहिए। रॉल्स का यही कॉन्सेप्ट है ना, जॉन रॉल्स का। जॉन रॉल्स बोलता है कहीं भी मैक्सिमाइजिंग द बेनिफिट ऑफ द मासेस। अगर आप कोई ये उसमें आप उसमें एथिक्स में भी पढ़ेंगे आप ये चीज़। वो बोलता है कि अलग अलग जो थ्योरी, तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ये बोलती है कि आपको मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना है कि व्हाट इट इज़ लीडिंग टू। इफ़ इट इज़ लीडिंग टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मासेस, कोई फ़ायदा हो रहा है तो उससे एक चीज़ से फ़ायदा हो रहा है एक लोग का, एक चीज़ से फ़ायदा हो रहा है 10 लोगों का, तो रॉल्सियन कॉन्सेप्ट इज सेइंग दैट यू विल प्रीफर टू हैव दिस बेनिफिट ऑफ 10 पीपल। ये रोल्सियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रोल्सियन क्राइटेरिया। तो इसमें ना इसने एक एग्जांपल लिया, वो बोलता है कि इफ़ यू आर गिविंग 1000 रुपीज़ टू ऑल, ठीक है, तो देन इट इज़ सेइंग कि उसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, इट विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी। लेकिन वो ये बोलता है कि उस फोकस अबाउट दैट पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग एनी थिंग विद हिम एंड यू आर प्रोवाइडिंग हिम 1000 रुपीज़, दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वो तो पॉवर्टी से बाहर आ गया ना। जिस नीचे वाले को 1000 रुपये मिले उसका तो एक महीने का खाने का इंतजाम हो गया, और आप यू आर नॉट गिविंग दैट 1000 रुपीज़ टू ऑल ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट कि उससे अमीर और अमीर हो जाएगा, राइट। तो बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप फोकस करिए इस वाले पे, आप उसको फोकस ही मत करिए, उसका क्या हो रहा है फॉरगेट अबाउट दैट, बिकॉज योर टारगेट इज दिस पर्सन, राइट। सेम डिबेट वाज रेज्ड व्हाइल यू इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016-17 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट UBI, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। उस कॉन्सेप्ट में ये था कि वो बोलता है कि ना आप कैसे करोगे, कैसे बांटोगे पैसा। एक कॉन्सेप्ट आता है, इफ़ यू, जब ये इलेक्शन आया था ना, तो इलेक्शन में इन्होंने बोला था ये राहुल गांधी ने, एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय कौशिक बसु, ध्यान है कौशिक बसु, ही हैज़ बीन इकोनॉमिक एडवाइज़र इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो ही वॉज बेसिकली, इट वॉज बीइंग सेड दैट कि ये जो अभी इनको अभिजीत बनर्जी को इस पर मिला है ना नोबल इकोनॉमी का, तो ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ दिस आइडिया ऑफ द UBI। तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब जब बोला था ना कि इसने कि 72,000 रुपये हम देंगे, राहुल गांधी का जो उसमें मैनिफेस्टो में था कि विल गिव 72,000 एवरीबडी, तो ही टुक दैट क्यू के यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट उन्होंने उनसे अभिजीत बनर्जी इन सब लोगों से लिया था, ठीक है। उसके बाद में इंटरव्यू भी आया था उनका उनके साथ में, ठीक है। तो दो आइडिया वॉज, फिर उनको वो अवार्ड मिल गया, नोबल प्राइज़ मिला, तो फिर वो लगा कि नहीं आइडिया इज़ गुड। तो उसमें भी यही आइडिया था, उस इकोनॉमिक सर्वे में भी यही बोला गया कि हाउ यू विल इंश्योर कि सबको वो पैसा मिलना कैसे चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल का तो मतलब ये है कि 1000 रुपये अगर यूनिवर्सली सरकार देगी देन इट विल बी गिवन टू दिस मुकेश अम्बानी और द पर्सन हु इज़ बैगिंग हियर। तो बोलता है आपका पैसा बर्बाद जाएगा। तो फिर आगे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बंदा, फॉर एग्जांपल अभी जो गवर्नमेंट कर रही है कि पीपल आर वॉलंटरली नॉट टेकिंग सब्सिडी। अभी क्या चल रहा है, जो आपका LPG वगैरह में होता है, क्या है वहाँ पे पहले बोलते हैं कि यू आर बीइंग मोटिवेटेड, ठीक है, किसी के नाम पे भी, आइदर इन द नेम ऑफ द नेशनलिज्म, आप सपोर्टिंग द कंट्री, तो आपको बोलना है कि भाई यू शुड वॉलंटरी सरेंडर द सब्सिडी। यही हो रहा है ना। तो वो भी यही बोलता है इकोनॉमिक सर्वे कि वन वे आउट इज़ कि आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं कि भैया उसको भी पैसा जाएगा। बोले एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, वो एक बार लेगा, 2 बार लेगा, लेकिन उन्होंने ये नाम भी लिया है, इफ़ अ पर्सन लाइक मुकेश अम्बानी इज़ बीइंग गिवन देन व्हाट। तो वो कहता है कि नहीं, कब तक लेगा वो, उसको भी लगेगा यार मैंने 1000 रुपये का क्या करना है, तो ही विल सरेंडर इट विल बी वो एक टर्म यूज़ करता है कि सोशल एक उस पर ना ऑब्लिगेशन होगा कि नहीं भाई मैंने नहीं लेना है, राइट। सो देखिए, जो हमारे यहाँ थॉट प्रोसेस चलता है ना, सेम थॉट प्रोसेस वहाँ भी, वो भी इकोनॉमिस्ट जो हैं वो भी पहले ह्यूमन बीइंग है, और वॉट एवर दे आर डूइंग दे आर ब्रिंगिंग द थिंग्स आउट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो वहाँ कोई वो नासा से नहीं, वो मार्स से नहीं आए वो लोग, ठीक है, वो यहीं की बातों को ही वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं।
दे आर फ्रेमिंग पॉलिसी आउट ऑफ दीज थिंग्स ओनली, राइट। तो यूबीआई में भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो रोल से बोलता है कि आप अगर 1000 रुपये देने सबको जाएंगे तो डोंट थिंक अबाउट कि वो 1000 रुपये से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। टॉक अबाउट दैट कि जो 1000 रुपये जिस बंदे के पास में कुछ भी, ही इज कमिंग आउट ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड दैट इज योर टारगेट, राइट। दिस इज व्हाट दिस इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग। क्या लिखा है? Economic survey even takes the example of हाँ, Rolsin criteria and supports promotion of growth because increase in the growth is leading to increase in the GDP size. In the GDP size, full stop. When we are having more GDP size of the economy, then only we will be in a position. Ish Bhagwati about growth. He is of the same opinion that the country should focus on growth rather than overemphasizing upon its one of the negative fallout, that is inequality. Clear? This is all about your inclusive growth, jobless growth. अब आपका प्लानिंग पूरा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूरी 91 वाली, आपका इंक्लूसिव और जॉबलेस ग्रोथ वाला पोर्शन पूरा, राइट। नाउ अभी एक डिबेट रह गया है। आई विल कम टू द बैंकिंग पार्ट। Twin balance sheet problem. What is the definition of asset? First, what is an asset of the bank? loans. Right. And when your asset becomes non-performing, is there any definition or what? After 90 days, Right. if they are not paying, it will become NPA. Right. That means if we recall what we जब मैं प्री का करा रहा था आपको, तो what I said कि this, for example, you deposited, suppose this Mr. A has deposited 1 lakh rupees, so this is asset of A, right? And this 1 lakh rupee becomes liability for him, for bank, right?
And now when this 1 lakh rupee is given as loan, then this 1 lakh rupee is asset of bank and liability of, for example, Mr. Malia. Right. So this is how this is correlation between asset and this liability, right? Now what happens that this asset, for example, you took loan, he took loan of 1 lakh rupee and he was supposed to return for example 5,000 rupees per month. If he fails, it become non-performing asset. It was the asset of the bank, and on this 5,000 it was including 500 rupees as interest. That means this 500 was the performance of this asset 1 lakh. Performance यही है ना, right? 500 rupees the performance of the asset. When this he after 90 days, उसने कहा जब पहले महीने नहीं दिया उसने 5,000, ठीक है, तो एक टेक्निकली उन्होंने बोला RBI ने, if you have to wait until 90 days. After 90 days, if it is not paying you the EMI, that means this asset is no more an asset for you. It has started becoming non-performing asset. Right, non-performing asset. This is how definition of NPA is. If you try to incorporate this definition into the agricultural part, तो बोलता है कि अगर जो छोटी क्रॉप है उसके लिए you have to wait for 2 cropping seasons and for big 1 crop. Right, this is the definition, technical definition. अब इसका ना हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि though this balance sheet issue was discussed in 2016-17 economic survey, but again ये फिर erupt हो गया ये इशू, ठीक है. इस बार का बैंक जो बजट है आपका वो भी बात कर रहा है, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे भी बात कर रहा है, बैड बैंक के बारे में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है. तो दैट वी विल डिस्कस. प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ विल डिस्कस. तो देखिए हुआ क्या कि व्हेन वी वर कुछ ध्यान है, शाइनिंग इंडिया तब चल रहा था, विच गवर्नमेंट टॉक्ड अबाउट द शाइनिंग इंडिया स्लोगन चल रहा था. कौन सी गवर्नमेंट थी उस वक्त? Who was which government? Who was the prime minister before Manmohan Singh? Vajpayee ji, right? So in 2004-5, right? The very popular slogan, "Shining India." Right? Shining India means that we were growing. इसको ना एक टर्म और भी बोलते हैं कि overheating of the economy. Why I have used this term? Because this time budget is using a term, this economic survey has used a term underheating. They have used this term underheating. At that time economy was overheating, right? What is the meaning of term Goldilocks zone? I have discussed this. What is Goldilocks zone? मैंने बहुत ढंग से समझाया था कि Goldilocks zone में ना ये होता है, एस्ट्रोनॉमी से उठाया गया ये टर्म. This Goldilocks zone is actually in between Saturn and Pluto. बिल्कुल शांत होता है वो इलाका. In between there is no asteroid. सब कुछ शांति से होता है. That reason that has been applied. This term was asked in UPSC because Raghuram Rajan has used this term. While he was talking in the something award ceremony in IIT Delhi, he was asked the question that how is Indian economy doing? Then he replied that don't worry, we are in the Goldilocks zone. And that question was asked in UPSC. Prior to that, this term was not used by anybody in economic reference. ठीक है. तो Goldilocks zone actually क्या है? शांत.
शांत का मतलब ये है कोई अनस्टेबिलिटी, ज़्यादा हलचल नहीं है, ग्रोथ हो रही है आपकी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, राइट, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है। 3 ही तो मैक्रो पैरामीटर है, ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और इसके उलट अगर आप बात करेंगे, देयर इज समथिंग स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? Growth is high, unemployment is low. ग्रोथ, Growth is high, हाँ, unemployment is low. ओके, I'm not sure. I'm confused. उल्टा बता रहे हो एकदम, Okay, unemployment is high. ठीक है। दिस comprises of 2 words, stagnation and inflation। GDP is low. स्टैग्नेशन इसका अपोजिट कर दो, ग्रोथ इज नॉट देयर, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर, राइट, यानी आपके पास में जेब में पैसा ही नहीं है, यू आर स्टैग्नेटिंग, राइट। ऊपर से आपका इन्फ्लेशन और आ गया, दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एन इकोनॉमी, डिजास्टरस फॉर द सिटीजन्स। आपके पास में पैसा है, आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर से आपके पास में जब आप निकले दूध लेने के लिए तो वो और महंगा हो गया, पैसा है नहीं, देन व्हाट? The most disastrous situation for an economy, and it has happened during 1990s, right? Economic crisis and also oil crisis. हाँ, 1970s. 1970s, 1990s, ये मैंने सब लिखवाया है आपको, Yes. है ना? PPTs. हाँ, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो दिस इज स्टैगफ्लेशन एंड ओवरहीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। इट वाज द टाइम ड्यूरिंग 2004। इसको ज़रा ढंग से समझना, क्योंकि जितना भी इकोनॉमी में अभी चल रहा है ना, इसका जो जेनेसिस है वो यहाँ से है, 2004 से है सारा, इसका जो जेनेसिस है। तो 2004, 2000, post 2000, it was a time when Indian economy, not only Indian economy but across the world was doing good, and specifically the Indian economy was doing exceptionally good, right? मैंने उसको एक टर्म भी आपको उस वक्त बताया था कि there was a term, I can recall that term. There is a term sterilization. And MSS. What is sterilization? What is market stabilization scheme? पता है ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। मैंने इसलिए आपको ना इस तरीके के टर्म्स दिए थे, इन पे काफ़ी फोकस करके समझाया था आपको। Limit the effect inflows and outflows of capital. हाँ, दिस इज स्टेरिलाइजेशन, Sterilization. राइट। व्हाट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम? To suck out excess liquidity from the market through issue of securities. राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक है। आप ना पढ़िए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आपकी इकोनॉमी पता है बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर आप मतलब वो रख के समझ में नहीं आ रही है, नहीं पढ़ना है। आप पढ़िए, अभी मैं 4-5 दिन हूँ यहाँ पे, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, क्वेरी है यू शुड आस्क, ठीक है। नहीं तो इकोनॉमी आई कैन गारंटी यू समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी। आई स्पीक वेरी ब्लंटली, ठीक है। So sterilization is done by open market operation. हाँ, राइट, ठीक है। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इट वाज द टाइम व्हेन देयर वाज सो मच फ्लो ऑफ दिस एफडीआई इन द इंडियन इकोनॉमी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वोक्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मैंने बताया था यशवंत सिन्हा उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने दे डिस्कस विद द प्राइम मिनिस्टर आरबीआई एंड दे केम अप विद द स्कीम ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, क्योंकि उससे पहले उन्होंने देखा ही नहीं था इतना एफडीआई मार्केट में आ रहा है, राइट। तो दे केम अप विद दिस स्पेशल instrument, market stabilization scheme, right? So I just want to explain those times of 2004 and 5, right? 2004 and 5. That means GDP was growing, and number मतलब investments were coming, ठीक है? And FDI was increasing, right? Rate on investment, return on investment were huge, right? जब ऐसा माहौल होता है, इसको सेंसेक्स में इसको क्या बोलेंगे?
whether it will be bullish or bearish. बोलो यार, bullish. राइट, सेंसेक्स बुलिश था उस वक्त, राइट. तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि द पर्सन इज टेक रिस्क्स. ठीक है, बंदा रिस्क लेता है. रिस्क इन द सेंस, 5 मिनट में करता हूँ, ठीक है. रिस्क इन द सेंस दे आर टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, and even the banks are interested in giving loans to the people because they know that economy is growing, economy is overheating, right? And that's why they are anticipating that their loans will not be turning into the NPAs. That's why they are giving the loans to the people, right? तो उस वक्त क्या चल रहा था कि banks were giving loans to the investors, राइट. ये बढ़ गया था. जो ये वाला बंदा था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, दे वर इन्वेस्टिंग एंड द इन्वेस्टमेंट्स वर ह्यूज, राइट. सेकेंडली, इट वॉज नॉट ओनली अबाउट द इंटरनल इन्वेस्टर बट FDI was also increasing. It was happening during that time in the mid starting from 2000, right? 2004, that's why infrastructure was the golden quadrilateral, right? उसी टाइम का है. नितिन गडकरी was highlighted by that golden quadrilateral. ठीक है, ये मुंबई पुणे के बाद में फिर इनको मिनिस्ट्री में, ये इधर मिनिस्ट्री में लाया गया उन्हें, राइट. और ये सब उस वक्त टेलीकॉम वाला प्रमोद महाजन, ठीक है, वो स्कैम वाला आर्ग्यूमेंट जो भी थे, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी. बट टेलीकॉम उस वक्त रिवॉल्यूशनाइज हुआ, ठीक है. फिर डिसइन्वेस्टमेंट उस वक्त स्टार्ट हुआ. तो वो जो बोलते ना एनिमल स्पिरिट्स, दिस इज टर्म एनिमल स्पिरिट्स. एनिमल स्पिरिट्स, ठीक है. इंडिया रियलाइज इट्स एनिमल स्पिरिट्स. And another term used by Obama, that India has arrived, right? India has arrived, arrival of India. It was actually that time, India has arrived, right? And it was the time फिर वो कि हमारी सदी टाइप से वो जो गुरु भारत, वो सब चीज़ें चल रही थी. अब हुआ क्या कि इस वक्त एक होता है ना, बारीकी होती है एडवेंचर में और एक फेल होने में. वो जो बारीक लाइन थी, जो थिन लाइन थी, उसको कोई एंटिसिपेट नहीं कर पाया, राइट. दीज पीपल हु वर इन्वेस्टिंग, दे वर एक्चुअली डूइंग द ब्लंडर्स, राइट. एंड इट वॉज नॉट हैपनिंग, इट वॉज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड. जब आपका लेहमैन हुआ, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट हैपेंस इन यूएस एट दैट टाइम? लेहमैन कोलैप्स, व्हाट वाज लेहमैन कोलैप्स? There were too many bad loans with the bank. In which sector these bad loans were? Housing sector. Housing sector, yes. See what was happening over there, that everybody took the loan from the banks. Same चल रहा था वहाँ पे कि भैया बहुत अच्छी इकोनॉमी है, ग्रोथ आ रही है, सब कोई आज 100 लगा रहा है, वो उसको 2 महीने बाद उसके 110 हो गए. 10% ग्रोथ विद इन 2 months, राइट. एक्सेप्शनली हाई. तो व्हाट वाज हैपनिंग, एवरीबडी वाज टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है. अब एक सिंपल सा सिचुएशन इमेजिन करिए कि यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है. अभी एक नॉर्मल इकोनॉमी है, अभी सभी ने यहाँ पे लोन लिया, एवरीबडी टुक द लोन एंड यू परचेज्ड हाउस, ठीक है. द पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंट, दीज आर द पीपल हु आर इन दिस हैदराबाद ओनली. एंड वॉट यू डिड, you are earning good and you are anticipating that बहुत growth होगा, then you started, आपने दूसरा लोन लिया, you took second house, you took third house, you took fourth house, and your whole salary is going in the EMIs. One fine morning you came to know that you are having certain exigency, you went into the market. पहला तो ये हुआ कि you didn't were in a position to pay off the EMI for continuous 3 months. Bank came to you and ऊपर से क्या हुआ कि you were in certain emergency and you were in need of the money, right? You went into the market and you want to sell your house. जब मार्केट में जब आप घर बेचने गए तो आपको पता लगा कि हर किसी के पास में 4-4, 5-5 घर हैं. Nobody is a buyer, ठीक है. अगर आप घर बेचने जा रहे हैं तो आपका जो 100 रुपीज़ का चीज़ थी वो आपकी कोई 50 में खरीदने को तैयार नहीं है, राइट.
बैंक ने आपको बोला यार वेयर इज़ माई EMI, तो बैंक ने बोला ओके आई एम डिक्लेयरिंग योर NPA, आई एम एक्वायरिंग योर प्रॉपर्टी। व्हेन बैंक गोज इन टू द मार्केट, वहाँ और बुरी हालत, कोई भी उसको 100 रुपये वाली चीज़ को उसने लोन दिया था 80 रुपीज़ का, एंड द बैंक वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू रियलाइज आउट 40 रुपीज़। बैंक वॉज देन बैंक स्टार्टेड टू इंट्रोस्पेक्ट देयर बैलेंस शीट्स। उन्होंने कहा मैंने किसको लोन दिया है, क्या स्टेटस है लोन का, तो पता लगा वहाँ तो हर किसी के पास घर है। तो द इकोनॉमी वॉज ओवर सप्लाइड, देयर वाज नो डिमांड एट ऑल। दैट मीन्स इट वॉज हाउसिंग बबल। तो जो बैंक था उसका बैलेंस शीट खत्म, क्या है, एसेट ही नहीं है, बेच क्या हो आप बैंक को, कर लो एक्वायर, राइट। लोगों के पास में ऑलरेडी ओवर सप्लाई है, कितना घर में रहोगे, कितना लोगों को, तो जब सबके पास में घर है तो किसको आप बेचोगे घर को, राइट। ऑलरेडी दीज एडवांस इकोनॉमीज आर ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड, ठीक है, तो किसको आप बेचोगे आप, ये तो यानी उस घर को उठा के यहाँ इंडिया में भेज दोगे, इट्स नॉट लाइक दैट, हाँ ठीक है। तो दिस वॉज द इशू विच इरप्टेड विच स्टार्टेड विद लेमैन। तो तभी ये कॉन्सेप्ट आया कि टू बिग टू फेल, लेमैन को पता लगा कि उसका तो सारा बैलेंस शीट ही करप्ट है, देन दे कोलैप्स्ड, राइट। इट वॉज हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो, वॉज हैपनिंग, पता नहीं यहाँ का मेरे को नहीं पता अबाउट रियल एस्टेट, बट ड्यूरिंग दैट टाइम एक्चुअली वन आर्ग्यूमेंट वॉज दैट कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन इन दिस रिजीम, जब कांग्रेस आई थी तो उस टाइम पे यू माइट हैव हर्ड दैट भट्टा पारसोल कांड, यमुना एक्सप्रेस वे, आई थिंक इट्स इन द न्यूज़ नाउ डेज, यमुना एक्सप्रेस वे जहाँ पे जो एयरपोर्ट आ रहा है, जेवर एयरपोर्ट, सुना है कि नहीं यार, सुना करो आप ये चीज़ें। हाँ, दिल्ली आगरा जो JP वाला हाईवे है, यमुना एक्सप्रेस वे, उस पर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट, राइट, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट। यू शुड टेक नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये ऐसा नहीं है कि दीज डेवलपमेंट्स आर रीजनल डेवलपमेंट्स, राइट, these development you should know all these developments because it is one of the largest infrastructure investment। लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास वो लोग मतलब उन्हें लोन ले रहे हैं वो लोग, ठीक है। और उस पर बहुत ड्रामा हुआ है, उस पर भट्टा पारसोल अपने आप में बहुत बड़ा कांड हुआ था वहाँ पे। रियल एस्टेट का जब बात आता है तो दैट इशू इज़ बीइंग हाईलाइटेड नॉट इन द मीडिया बट इट इज़ बीइंग हाईलाइटेड। जो लैंड एक्विजिशन बिल था ना वो उसके बाद में चेंज हुआ था, ठीक है। तो अभी भी उस पर जो डिबेट चल रहा है, तो इसलिए आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे वेदांता वाला इशू है, ठीक है, इट्स नॉट फ्रॉम यूपी, दैट इशू इज़ नॉट फ्रॉम यूपी, दैट इशू इज़ फ्रॉम दिस ट्राइबल एरिया, बट यू शुड नो, द स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर UPSC दे मस्ट नो। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आपको हैदराबाद की चीज़ें पता होनी, नहीं, आपको सब जगह का पता होना है, ठीक है। आपको रायगढ़ का भी पता होना है कि वहाँ पे जो ट्राइबल का इशू हुआ है वो भी पता होना है आपको। कुदानकुलम में जो चल रहा है वो भी पता होना है आपको कि वहाँ पे कैसे वो बोलते हैं कि वी आर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट, लेकिन गवर्नमेंट कुछ और बोलती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ यू शुड नो, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए, दिस वॉज ऑल अबाउट हाउसिंग बबल। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद व्हाट हैपन्स विद इंडिया।